Bismillahirrahmanirrahim. Salam to all students. I hope you all are fine. Now students, today we are going to start chapter number 4 and exercise number 4.3. And today we will do question number 1 and 2 of exercise number 4.3. Now our topic is SERT and their application. Now before we move on SERTs, let's look at few terminologies. Now consider the nth root of this term. Now in this term, n shows order and radical, and a shows radicand or base. Now in this term we have a is rational, but the result of this term is irrational. For example, if we have a which is equals to 5 and order is 3. Now if we calculate this term with the help of the calculator, now the answer is in decimal form. So that's mean if the answer is in decimal form, so this is SERT or irrational number. As you already know that irrational number or rational number. Irrational number, if the answer is in decimal form, for example if we have 3.156, the answer is in decimal form, so this is irrational number. Irrational. But if the answer is in our whole form, for example 4, 5, 6, so this is rational numbers. For example, if we have under root 16 which is equals to 4, under root 25 which is equals to 5, and square root of 36 which is equals to 6. So 4, 5 and 6 is a whole number, and this is a rational number, not irrational number, because the answer is in whole number form. If the answer is in whole number form, so this is the rational number. But if the answer is in our decimal form, so this is the irrational number. So this is the basic distinguish between rational and irrational number. Now this is the SERT, and this is also a irrational number. SERT and irrational number. But on the other situation, we have pi and e is also an irrational number, but this is not a SERT. The reason is that pi is a irrational number, not a rational number, but in this situation we say that a is the rational number. So if a is the rational number, so this is known as the SERT. So that's why in this situation pi is not a SERT. This is simply a irrational number. Now the other situation, we study the operation on SERTs. Operation on SERTs include addition and subtraction, multiplication and division. Now move to the exercise. Open the page number 90. In page number 90 we have question number 1. Question number 1 is express each of the following SERT in the simplest form. Express
in the simplest form. Now in part 1, square root 180. ओके गर्ल्स, अगर आप ये कंडीशन अपनी देखें तो आपके पास ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, सर्ट, बिकॉज 180 हमारे पास क्या है, रेडिकेंट है और ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास अगर कुछ भी ना हो तो डैट्स में यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। क्लियर। अब इसको हमने क्या करना है, इसकी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है सर्ट की। तो इसमें हमारे पास क्या रूल होता है कि इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने किसका लेना है, एलसीएम हम लोगों ने ले लेना है रेडिकेंट का। सो एलसीएम सो 180 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये इक्वल हमारे पास है 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5। सो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल इसको क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। इस टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो हमारे पास रह जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड स्क्वेयर रूट 5 विच इज़ इक्वल्स टू 6 स्क्वेयर रूट 5। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ट स्क्वेयर रूट ऑफ 180। क्लियर। सिंपल आप लोगों ने पार्ट 2 भी हमारे पास सिंपल वही है। पार्ट 2 में हम लोगों के पास जी है 162 3 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास सर्ड है और इसको हमने किस फॉर्म में करना है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सेम वही रूल करेंगे, आप लोगों ने एलसीएम लेना है 162 का। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर आप लोगों ने करना है जो आप लोगों ने पार्ट 1 में किया। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वेयर रूट 128। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों के पास जो रेडिकेंट है वो हमारे पास क्या है, 128 है और यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास क्या है, क्यूब है। तो आप लोगों ने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 4 128 पावर 1/3। सेम वही प्रोसीजर करेंगे, आप लोग 128 का एलसीएम लेंगे। इस टर्म का हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 4 तो हमारे पास 7 टाइम है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो कि हमारे पास जो पावर है वो है 1 डिवाइडेड बाई 3। पावर हमारे पास क्यूब में है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसकी पेयरिंग भी 3 करके करनी है। इसकी रीज़न ये है कि आप लोगों के पास जो क्यूब होगा वो इसकी पावर से कट हो जाएगा, तो ये इसकी फर्दर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे आप लोग करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 4 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1/3। अगेन आप लोगों ने इसको स्प्लिट कर देना है, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1/3 ये क्यूब हमारे पास कैंसिल हो गया। इसकी रीज़न ये थी, हम लोगों ने इसकी पेयरिंग इसलिए क्यूब 3 करके की थी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास से कैंसिलेशन हो जाना था। तो ये हमारे पास टर्म रह जाएगी जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1/3 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 अगेन आपकी कैंसिलेशन हमारी हो गई, 4 की 4 से हो जाएगी। तो ये टर्म हमारे पास जी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1/3। अच्छा, अब हमने इसको किस फॉर्म में करना है, सर्ट की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये सर्ट था और हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट हमने की है। तो इसको भी हमने किस फॉर्म में करेंगे, सर्ट की फॉर्म में करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 3। तो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, दैट्स मीन 3 डिवाइडेड बाई 4
128 इस टर्म के हमारे पास क्या है, इक्वल आ गया। और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इस सर्ट की हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अच्छा, अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट अगेन इज़ योर होमवर्क। सेम आप लोगों ने क्या करना है, 96 है यहाँ पे, हम लोगों ने 96 का एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास में एक हिंट आपको इस होमवर्क, ये जो होमवर्क का क्वेश्चन है ये मैं आपको दे देती हूँ। ये जी हम लोगों के पास जो टर्म थी वो हमारे पास है 96 x6 y7 एंड z8। अच्छा, यहाँ पे सिंपल आप लोगों के पास जो ऑर्डर है वो क्या है, 5 है। तो आप लोग स्प्लिट इस तरह से करें कि आपके पास पावर में भी क्या आ जाए, 5 आ जाए। सेम यहाँ पे जैसे हमने काम किया, आप लोगों ने 5-5 करके पेयरिंग करनी है। अगर आप एलसीएम 96 का लेंगे तो वो 2 के टेबल में इस तरह से आप लोगों के पास आएगा कि आप लोगों ने उसकी पेयरिंग 5-5 करके करेंगे। यहाँ पे हमने 3-3 करके की थी, सेम इस तरह से यहाँ पे आपने 5-5 करके करनी है। अब यहाँ पे x6 को भी आपने स्प्लिट करना है। वो किस तरह से स्प्लिट करेंगे, x5 और 1। एज ऑल ऑफ यू नो डैट कि आप लोगों के पास पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं। सेम y7 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y5 एंड y स्क्वेयर। z8 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z5 एंड z3। इसके करने की ये वजह है कि हमने क्या करनी है, इसकी कैंसिलेशन करनी है। ये जो आप लोगों के पास ऑर्डर है ना, उससे हमने कैंसिलेशन करनी है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करें। अच्छा जी, अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको प्रीवियस बताया कि ऑपरेशन और सर्ट्स। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 में ऑपरेशन सप्लाई हो रहे हैं। ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से थे, एक तो हमारे पास एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था और डिवीजन था। बट इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास जो ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, we can multiply and divide surds of the same order by making use of the following laws of surds। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हम लोगों के पास 2 लॉज हैं। मल्टीप्लिकेशन का अलग लॉ है और आप लोगों के पास डिवीजन का अलग से लॉ है। मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ, वो हमारे पास क्या है। अच्छा, इस सिचुएशन में गर्ल्स, अगर आप लोगों के पास क्या है, ऑर्डर सेम, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर सेम है, एन ऑर्डर सेम है तो हम इसको किस तरह से लिख कर सकते हैं, वी कैन राइट एज ए बी एंड ऑर्डर इज़ एन। कि हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर सिंपल 1 टाइम आएगा। तो ये टर्म आप लोगों के पास इस टर्म के इक्वल है। सेम एज इट इज़ डिवीजन में भी सेम आप लोगों ने यही काम करना है। अगर आप डिवीजन में देखें गर्ल्स तो आप लोगों के पास क्या है, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो आप लोगों ने वही काम करना है, ए डिवाइडेड बाय बी, और ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, ओनली 1 टाइम आएगा। क्लियर, डैट्स मीन ये टर्म आप लोगों के पास इस टर्म के इक्वल आ जाएगी और ये टर्म इस टर्म के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास ये 2 लॉज यूज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अगर हम देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो मल्टीप्लिकेशन का लॉ होता है ना, उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। फिर अगेन हम डिवीजन की तरफ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का लॉ यूज़ हो रहा है कि आप लोगों के पास 2 सर्ड्स हैं और ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है। अगर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर गिवन नहीं है, तो डैट्स मीन यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 और 2 है। क्लियर, ऑर्डर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे। ओनली आप लोगों ने क्या करना है, ए बी मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, √18 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, सेम वही ऑर्डर है, हमारे पास सेम ऑर्डर है, 2 और 2 का ऑर्डर है, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, डिवीजन का। सेम ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर है और डिवीजन का हमारे पास होगा, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6
नाउ द फाइनल आंसर विच इज़ इक्वल्स टू √3। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया है इन टू लॉस को यूज़ करते हुए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास इसका जी सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी गर्ल्स वही आप लोगों ने सेम काम करना है। आप लोगों ने 21 स्क्वायर रूट 21 थे और हमारे पास क्या है 9 है। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर रूट 21 और 9 है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का लॉ अप्लाई करना है। आप लोगों ने 21 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन हमारे पास लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है, डिवीजन का, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर सेम है। अगर हमारे पास ऑर्डर सेम है तो सेकंड हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा, डिवीजन का। तो ये आप लोग खुद से करेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास है 243 x5 y10 z15 and our order is 5. So we can write as 243 x5 y10 z15 पावर 1/5। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमने किसका लेना है, 243 का। 243 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 3 के टेबल में हो जाएगा 81327। अच्छा, 3 पावर 5 विच इज़ इक्वल्स टू 343। 1 2 3 4 5, so we can write as 3 power 5 x5 y10 z15 पावर 1/5। अगेन सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। 3 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 x5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 y10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 z15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। कैंसिलेशन हमारे पास हो जाएगी। तो ये हमारे पास जी आंसर इसका आ जाएगा 3xy² z3। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। सेम एज इट इज़ इसके पार्ट 4 जो है ये भी आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा जी, पार्ट 5 में हम लोग क्या करेंगे। पार्ट 5 हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √3। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का लॉ अप्लाई हो रहा है। क्यों लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर सेम है। हमारे पास यहाँ पे भी 2 है, 2 2 ऑर्डर हमारे पास 3 की 3 टर्म्स में सेम है। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन 3 की 3 टर्म्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना। 21 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 21 occurs 2 times, so we can write as 21 square and root cancel, so the final answer is 21. I hope you understand all the lecture. Thank you.